The most common and the most important question which can decide your career path in Canada, whether you'll get a PR or not, whether the return on investment will be worth it or not. ये जो आप 20-25 लाख रुपए लगा रहे हो डिप्लोमा में या फिर उससे ज़्यादा लगा रहे हो डिग्री में, will that be worth it at the end or not? या फिर आपको इंडिया घर जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा without any job, without any return on investment. Everything depends on one question: what are the courses or what are the colleges or what are the universities I shall pursue when I come to Canada? That's the question, and this is the answer we'll be looking for in this video. What shall you choose, a degree or a diploma? You come in a study permit with 2 suitcases. You study here, you get the diploma or the certificate, or you graduate here, then you apply for the work permit, you get the PGWP for 3 years, then you apply for PR, and then you do your own startup and everything, whatever. Okay? If you're not confident in what you're choosing, what course you should choose, which is better, university or a college, which is better, a diploma or a degree, what is the return on investment, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए before you apply for the visa, not after that, not when you come here, before you apply for that visa, because that's the time, that's the right time. There's no point in deciding when it's too late. ठीक है, आप उस चीज़ को फिर चेंज नहीं कर सकते. That will be your sweet past. मैं आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दूंगा with which you can answer it for yourself. I'll talk about the financial background you have. I'll talk about the stress capacity you can take. I'll talk about your future goals, long-term goals, 5-year goals, 2-year goals, 1-year goal, monthly goals. सारे कुछ को compile करके I will give you a blueprint with which you can decide it for yourself. आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पापा मम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एजेंट से पैसा दे के, कमीशन दे के उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. It's your life. You should have the right to decide, right? The first point is money. अब देखो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपके पास लिक्विड कैश कितना है, आपके पास एसेट्स कितना है, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास कमोडिटीज़ कितने हैं, ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स यू विल रिक्वायर टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर फाइनेंसेस. अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड कैश अगर ज़्यादा नहीं है, देन यू वोंट गेट द वीज़ा फॉर अ डिग्री प्रोग्राम. डिप्लोमा के लिए आपको अप्रूवल मिल जाएगी. डिप्लोमा इज ईजियर, अ वीज़ा फॉर अ डिप्लोमा कोर्स इज फार ईजियर टू गेट देन अ डिग्री, बिकॉज एन एजुकेशन लोन भी आपको एक डिप्लोमा के लिए मिल जाएगा, बिकॉज it's around 15-20 lakhs, but for a degree it's around 40-45 lakhs. It's a 4-year program consisting of 2 + 2 + 2 + 2, which is 8 semesters compared to a diploma which is just 4 semesters. या फिर अगर आप 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, that is 2 semesters, वो पूरा आप इंडिया से पे करके आओगे, as well as your GIC guys. So GIC plus 1-year program, it's all paid off. यहाँ आके just आप पार्ट टाइम करोगे to cover your living expenses, that's it. So you should know how much money you have in hand to support the education type you want, be it a degree or be it a diploma. Analyze that first. Number 2, we'll be talking about the courses. अब कोर्स देखो, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ही मिलेंगे, मैकगिल यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी हो गया, जस्ट एन एग्जांपल, एथिकल हैकिंग हो गया, ठीक है. कोई आपको बैक एंड कुछ हार्डकोर प्रोग्रामिंग सीखना है, वो बस यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको सिखाया जाएगा विद प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स, लैब वर्क. वो कॉलेज में नहीं होगा, बिकॉज कॉलेज में नंबर 1 तो उनका फैसिलिटी, उनका इंस्टीट्यूशन का साइज़ ही कम होता है, उनके पास फैसिलिटीज़ कम होती है, उनके पास प्रोफेसर्स कम होते हैं, उनका बजट ही कम होता है ओवरऑल एजुकेशन का, एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो which is one of the best in Canada. Ask this question to yourself: are you actually serious about the program you are studying? और आपका जो रेलेवेंसी है, ठीक है, आप 12th में आपने किया कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था, क्या आप कॉमर्स का ही कोई कोर्स करना चाहते हो, आगे कॉमर्स बैकग्राउंड में ही कुछ जॉब फील्ड अप्लाई करना चाहते हो? अगर नहीं, यू आर जस्ट कमिंग फॉर अ कोर्स टू गेट द PR, वीज़ा के लिए कोर्स अप्लाई करो. आपको पढ़ना ऐसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, यहाँ का आपको जॉब पे फोकस करना है. यू डू नॉट हैव दैट फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज वेल. आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन उतारना है, मनी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, देन फॉरगेट अबाउट इट. डू अ डिप्लोमा, बिकॉज डिग्री में आपको पढ़ाई में एक्चुअली 20-30 घंटे देने पड़ेंगे हफ्ते में. ओनली देन यू आर गोइंग टू पास द कोर्स विद अ 60%. कॉलेज में जो पासिंग एवरेज है, पासिंग क्राइटेरिया है, वो 50% है, यूनिवर्सिटी में 60% है. सो इफ़ यू आर कमिंग हियर टू स्टडी, एक्चुअली स्टडी, then you should also analyze how much time you're willing to spend on your studies, because यहाँ पे if your family has a good financial background, your family is going to support you throughout your studies, well and good, you're very lucky, you're born with a silver spoon, but mostly ऐसा नहीं होता. So if you want to study here, actually study with focus, then you also have to work for your living expenses, right? अगर आप part time भी कर रहे हो, that is 2 to 3 days a week, full time कर रहे हो, that is 5 days a week. If you do not go 5 days a week or 4 days a week, they'll fire you, no one's gonna hire you, ठीक है. Now talking about the future goals and long-term goals, guys. If your long-term goal is to get a PR or open a business here or get a good job, I will suggest do a diploma, because in diploma the time spent in education is far less. You can actually use the remaining time. अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का डिप्लोमा है,
1 साल में आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, 2 साल के डिप्लोमा में आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू अ डिग्री एज़ कम्पेयर टू अ डिग्री। डिग्री में भी 4 साल के डिग्री में 3 साल का वर्क वीज़ा है, 2 साल के डिप्लोमा में भी 3 साल का वर्क वीज़ा है। सो यू कैन वर्क फुल टाइम, गेट सम सर्टिफिकेशन, स्किल योर सेल्फ, कोडिंग सीखना है कोडिंग सीखो, ट्रेडिंग सीखना है ट्रेडिंग सीखो, मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, SEO सीखना है, कुछ भी सीखो एज अ साइड हसल, गेट सर्टिफिकेशन एंड अप्लाई फॉर दैट फील्ड जॉब। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा आपको कनाडा में जॉब नहीं दिलाएगी, इंडिया वाला सीन नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। सो डो नॉट स्ट्रेस मच अबाउट द प्रोग्राम यू आर स्टडिंग। यू वांट अ PR और यू वांट दैट पेपर, पेपर और PR चाहिए कोई भी कोर्स ले लो, पेपर चाहिए अच्छा कोर्स लो, दैट्स इट। I think these information are enough for you to decide or give you a framework to decide which one should you choose, a degree or a diploma. Both are very good, both are very bad. It's all about what you want in life, your future goals, your financial background, the time you want to spend. आप कैसे balance करते हो life study को, work study को, up to you guys. Decide for yourself. Coming to the second category of this video guys, which one is actually better, an university or a college? अब देखो simple बात है, अगर डिग्री करना चाहते हो डिग्री कॉलेज में अलाउड ही नहीं है, you have to go to a DLI approved institution, यूनिवर्सिटी। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कनाडा, मैकगिल उसके बाद आ जाता है, क्वींस यूनिवर्सिटी उसके बाद आ जाता है, ये सारे टॉप 5 में आते हैं। अगेन अल्गोमा यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। बट इफ़ यू वांट टू स्टडी अ प्रॉपर डिग्री 4 साल का, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ेगा। यू हैव टू क्वालिफाई, अगर IELTS में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट एटलीस्ट 60% टू पास ऑल द कोर्सेज। यूनिवर्सिटी का जो डिग्री का वैल्यू है वो अगेन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, एंड ये दिस इज़ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर एवरी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करो, UK में करो, US में करो, इंडिया में भी करोगे तो डिग्री का वैल्यू ऊपर है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। बट अगेन एज आई सेड, यहाँ पे प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे उन्हीं बंदों को जॉब मिलता है वर्क पॉइंट पे। स्टूडेंट लाइफ में तो रेफरल लगा के, ये लगा के, वो लगा के कुछ ना कुछ कर लोगे, जैनिटर का काम कर लोगे, साफ सफाई कर लोगे, कस्टमर सर्विस कर लोगे, बारटेंडिंग कर लोगे। बट वर्क परमिट पे वहाँ पे कंपटीशन एक्चुअली है, वहाँ पे उन्हीं बंदों को जॉब मिलता है। इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ओ भाई तेरा 75% है, तेरे को जॉब नहीं दूंगा, ओ भाई तेरा 90% है, आ जा ऑफिस में, ठीक है, योर साइंड इन, योर हायर्ड। ऐसा नहीं होता। दे विल टेल यू वन क्वेश्चन, ओके यू स्टडीड बिजनेस मार्केटिंग राइट, शो मी व्हाट यू कैन मार्केट। ठीक है, ये तेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे कंपनी का एक प्रोडक्ट है, आई विल गिव यू 2 hours, make posters about it, do graphic designing, market it on social media, run Facebook ads, run Google ads, मुझे leads लाके दिखा, मुझे दिखा कितने conversion है, तेरा landing page कैसा है, आपको actually करके दिखाना पड़ेगा। If you're skilled enough, if you know your shit, if you know your craft, if you know what you have studied in the university program or the diploma program, you will be hired। ठीक है, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है कि भाई रेफर लगा के, जुगाड़ लगा के जॉब लग गई। तो भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, डिप्लोमा में पढ़ोगे जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम है। बट अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द न्यूट्रल बेस कि भाई अगर आप बाहर से सर्टिफिकेशन कर रहे हो, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ रहे हो, आपका वो बीस्ट माइंडसेट है, आप में भूख है, आप नेटवर्किंग भी कर रहे हो, आप खुद को पोजीशन कर रहे हो उन जगहों पे जहाँ से आपको आगे जाके जॉब्स को मिल सकता है, यू आर गोइंग एक्टिवली और पार्टिसिपेटिंग इन जॉब इवेंट्स, आप रेज्यूमे को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल को, लीडरशिप स्किल को, पर्सनैलिटी को, फैशन को बिल्ड कर रहे हो, देन देयर इज़ नो कंपटीशन गाइज, यू विल गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ, नो मैटर आपने पढ़ाई किया या नहीं किया। डिप्लोमा डिग्री तो दूर की बात है, पढ़ाई किया या नहीं किया, यू गोना सिक्योर अ जॉब फॉर योरसेल्फ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मोटिव ऑफ दिस वीडियो गाइस। जैसे जैसे वीडियो में हम बढ़ रहे हैं, यू आर गेटिंग सेल्फ अवेयरनेस गाइस। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना, मैं एज अ सब्सक्राइबर इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई सी भाई वो ना बाहर की दुनिया पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। कैनेडा में वही रिलायंस ना आपको हार्म करेगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ इंडिया में कर लोगे, आप रिलाई कर रहे हो अपने मम्मी पापा पे, अपने बेस्ट फ्रेंड्स पे, अपने कंसल्टेंट्स पे, वो पैसा लेके आपको सही गाइड कर भी दे एक बार के लिए। बट यहाँ पे इफ़ यू ट्रस्ट एनीवन, they'll kill you, they'll harm you so bad that you cannot get up from that rock bottom. So मैं आपको इंडिपेंडेंट वाला माइंडसेट देना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनो गाइस। ठीक है, यू शुड नो हाउ टू डू क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड फिगर आउट द आंसर योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज योर लाइफ आफ्टर ऑल। तो आपका पाथ आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, बी इट गुड और बैड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अच्छा चूज़ किया, अच्छा डिसीजन लिया, ऑल क्रेडिट्स टू यू एंड ओनली यू। इफ़ यू टेक अ बैड पाथ और रॉन्ग डिसीजन, अगेन इट्स अप टू यू। आपने गलती किया है, उसी से सीखो एंड आगे बढ़ो, उधर स्टक मत होना, ठीक है। एंड नाउ विल बी फाइनली moving on to the last part of this video, in which I'll tell you what courses to choose and what courses not to choose, which will make sure you get the return on investment, which is the PR card after you graduate. Before you skip this video and try to get the list of the courses जो कि अच्छे हैं जो कि बुरे हैं, मैं बता दूं ऐसा कोई लिस्ट है ही नहीं।
कोर्स सबसे ज़्यादा उनको मैटर करते हैं जो कोर्स को बेस करके आगे फ्यूचर स्टडीज़ करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th, यू वांट गेट अ डिप्लोमा में के बाद यू अप्लाई फॉर द वर्क वीज़ा, थोड़ा सा काम करने के बाद यू अप्लाई फॉर द PR, यू गेट द PR एंड आपका ट्यूशन फीस जो आप पे कर रहे थे उससे रिड्यूस होकर 10% हो जाएगा। अगर आप $10,000 पर सेमेस्टर पे कर रहे थे, इट विल रिड्यूस टू $1,000 वंस यू आर अ PR हियर, एंड देन यू वांट टू कंटिन्यू योर फर्दर स्टडीज, यू वांट टू डू अ बैचलर्स डिग्री, देन यू वांट टू डू अ मास्टर्स, आप US में मास्टर्स करना चाहते हो या फिर डॉक्टरेट करना चाहते हो, यू वांट टू गो थ्रू द एजुकेशनल लाइन, एकेडमिक लाइन एंड गेट द पेपर्स, एंड आप उस लाइन में प्रॉस्पेरिटी गेन करना चाहते हो, आप एजुकेशन को वैल्यू करते हो, ओनली देन द कोर्स मैटर्स। यू हैव टू वर्क हार्ड, जिसमें ज़्यादा स्किल होगा, जिसमें ज़्यादा भूख होगी, वो आगे जाके जॉब को ग्रैब करके निकल जाएगा, आप बैठ के PS5 में गेम खेलोगे। सो बेसिकली गाइज देयर आर नो गुड कोर्सेज, नो बैड कोर्सेज इन कैनेडा। हाँ, कुछ कोर्सेज कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करेंगे कि बिकॉज उनका कमीशन उनसे लिंक्ड है, टू नॉट डू दोज कोर्सेज। थोड़ा सा रिसर्च खुद पे करो कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वीज़ा के लिए रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, SOP में रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इंडिया में कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, यहाँ पे आप म्यूज़िक पढ़ाई करना चाहते हो, म्यूज़िक का कोर्स लेना चाहते हो, यू वोंट गेट द वीज़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर पैशनेट हो, यहाँ पे कॉमर्स का ही कोर्स लेके आओ, द फर्स्ट डे यू लैंड हियर, ये मैंने पहले वीडियोज़ में ही बोल रखा है, द फर्स्ट डे यू लैंड हियर, सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही अपना कॉलेज अपना कोर्स चेंज कर लो, आपको पूरा फुल रिफंड मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का पूरा 10-12 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। थोड़ा सा फीस चार्ज करेंगे 5-6 हज़ार रुपये, दैट इज़ ओके, राइट। सो भाई देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चूज़ द कोर्सेज वाइसली। अगर पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छा कोर्स लो, अगर PR लेना है, कोई सा भी कोर्स लो, बट रेलिवेंसी मैटर करती है। एंड आगे जाके अगर उस फील्ड में बिजनेस करना है, देन व्हाई नॉट चूज अ कोर्स रेलिवेंट टू दैट बिजनेस, रेलिवेंट टू द स्टार्टअप यू वांट टू डू 5 years लेटर, बिकॉज ये जो नॉलेज है कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। एंड द नेटवर्क यू मेक, द नेटवर्क विद द प्रोफेसर्स, द नेटवर्क विद अदर स्टूडेंट्स, विद योर पीयर्स, विद योर मेंटर्स, वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। कॉलेज में पढ़ाई कुछ नहीं होता, वो नेटवर्क ही मैटर करता है, किससे भी जाकर पूछ लो। वो जो फ्रेंड सर्कल अपना बनता है ना, वो आगे जाके बहुत काम, वही उसमें से कोई बंदा आपका कैशियर होगा, उसी में से कोई बंदा आपका मैनेजर होता है, उसी में से कोई बंदा आपका फाइनेंस देखता है। ऐसे ही चलता है बिजनेस भाई, ठीक है। स्टार्टअप बूटस्ट्रैप करोगे तो ऐसे ही होता है। आई होप आपको घिसा पेटा इन्फॉर्मेशन से कुछ अच्छा मिला, कुछ नया मिला सीखने को। आई गिव यू अ फ्रेमवर्क एंड आई टॉट यू द स्किल टू क्वेश्चन योरसेल्फ एंड फिगर आउट द आंसर। सारा आंसर अपने अंदर है भाई। ये स्पिरिचुअली थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बट ये सच है, सारा आंसर अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने अंदर है भाई। बाहर सीख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव सम टाइम आइसोलेटेड, फ़ोन को छोड़ो, मम्मी पापा को साइड रखो, दोस्तों को साइड रखो, रूम में खुद को लॉक करो एंड जस्ट थिंक व्हाट डू आई वांट इन लाइफ, व्हाट आर माई गोल्स। वो आफ्टर 5 years मैं खुद को कैसे देखना चाहता हूँ। डू आई वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, डू आई वॉन्ट टू बी एन ट्रेडर, डू आई वॉन्ट टू बी अ जॉब पर्सन हु इज़ डूइंग अ 9 to 5 हाई पेइंग जॉब। वो भी अच्छा है, सबको बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अच्छा है, जॉब भी अच्छा है गाइस, बिजनेस भी अच्छा है। तो दुनिया में ना कोई भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होती कि ओके ये अच्छा है, ओके ये बुरा है। देयर आर 7.5 billion पीपल, आई गेस 8 billion नाउ, ठीक है। सबका माइंडसेट, सबका करियर पाथ, सबके अंदर स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस अलग अलग है। यू हैव टू फिगर शिट फॉर योर सेल्फ आउट। एंड कैनेडा इज़ अ वेरी गुड कंट्री, कंपटीशन बहुत कम है, पॉलिटिक्स बहुत कम है। आपका डायरेक्शन ज़्यादा मैटर करता है आपके स्पीड से, ये बार बार याद रखना, आपका डायरेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। द पाथवे यू आर चूजिंग, आपको बिलियनर बनना है, मल्टी मिलियनर बनना है, या फिर नॉर्मल रिच पर्सन बनना है, तीनों ही अच्छे हैं, ठीक है, तीनों ही मैट्रिक्स से बाहर है, बट कौन सा बनना है, बिकॉज 3 things कम विथ 3 sets ऑफ प्रॉब्लम्स। बिलियनियर का पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं होता, मल्टी मिलियनियर का स्ट्रेस होता है, रिच पर्सन का भी उतना फ्रीडम नहीं होता, बिकॉज ही इज़ जस्ट रिच, राइट, ही इज़ नॉट दैट वेल्थ, ही डजंट हैव जनरेशनल वेल्थ। तो सबका अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ कि आप कौन सा लाइफ चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन ऑल द फैक्टर्स। तो आई होप दिस वीडियो इज गिवन यू दैट फ्रेमवर्क टू आस्क क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ एंड आंसर इट योरसेल्फ। कमेंट में बताना कोई भी डाउट हुआ तो। चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो गाइज, अच्छा लगता है, 1 million जल्दी होने वाला है। एंड टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।